many times during the winter and once during the rainy season. Nee, sorry, twice during the rainy season and multiple other times in other times of the month of the year. Okay, so we are ready to begin. Good evening, everyone. Warm welcome. And we are doing the study session on this book. This is The Secrets of Karma by Mr. Vijay R3. If you have the book, wonderful. If you don't have it, don't worry. So we are going to complete chapter 3 today. We are on page number 96 and we will complete chapter 3. We will revise chapter 3 and my agenda is this Thursday, let's do a forgiveness session. Let's not do the book study, but let's do forgiveness on whatever we have done so far. So, very quickly, we will do a very quick revision of chapter 1, 2, and 3, not page by page, not topic by topic, just like, kind of chapter maybe. Chapter 1 was on this, chapter 2 was on this, chapter 3 was on this. And let's do a forgiveness on that. Like, whatever mistakes we have done connected to these aspects of our life, let's do a forgiveness on that. Okay. So maybe a 1 hour session only, and we will do the understanding of the karma path and forgiveness. That's it. Nothing else on that day. So I'll definitely post. So for the time being, let's start with page number 96. We are on this sub chapter which says tolerance. So the heading of this chapter is called tolerance. We are understanding that how important it is to tolerate people around you. बहुत बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी में हमारे आसपास जो हैं, खासकर जो हमसे छोटे हैं, हमसे एज अ सोल हमसे यंग है, या हम वो गलतियां कर रहे हैं, उन्हें हम बर्दाश्त करें. तो समटाइम्स ये शब्द जो है बर्दाश्त, ये बहुत भारी शब्द है एंड हम गुस्से में मोस्टली बोलते हैं हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं. But some, if you take it like this, now like the teaching of karma, this is something that the lords of karma want you to do, then maybe it will become easier for you. Okay. So, and tests are going to come, huh? Believe me. Today morning itself, somebody did something and I was like about to blast. But then I kind of, वो movies में नहीं दिखाते कि आप ऐसे blast करते हो और फिर आप ऐसे वापस आ जाते हो. That 3D effect, it's a high digitally technified effect. I almost did like that. I blasted and then I came back and said, no, 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 I have to tolerate. It's funny sometimes, but that's the teaching. And then I was sitting all by myself and I was saying, it's okay, Piali, it's your karma. You're responsible for this. You attracted this person. It's something you must have done before because of this happened. So no point in blaming that person. Tolerate it, number one, and take steps. Take steps, take action. कि क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं. So mistakes will keep on happening. Remember, हम में से कोई भी perfection level के आसपास भी नहीं भटक रहा होगा इस बार. कम से कम मैं तो नहीं. So कोई और पहुंच गया है तो बहुत अच्छा, congratulations. At least मैं तो नहीं. I make so many mistakes every single day. But the point is, I am more aware. मैं सीख रही हूँ. मैं हर रोज शायद गलती करती हूँ, हर रोज इस गलती से सीखती हूँ, हर रोज एक प्रॉमिस करती हूँ कि नहीं, कम गलतियां करेंगे, ज्यादा जल्दी सीखेंगे, ज्यादा जल्दी अवेयर होंगे एंड डे बाय डे maybe 0.5% better होते रहेंगे. So that's the goal, that's the objective. So that is what tolerance is all about. So to conclude the session, to conclude the chapter, the next part is called religious and race intolerance. So the first part was generalized tolerance of anything, everything, especially younger souls. The next part is religious and race intolerance. Judge not that ye be not judged. Holy Bible. आप दूसरों को जज मत कीजिए तो आपको भी जज नहीं किया जाएगा. Intolerance towards any religion or race is bad karma. Moreover, if you hate any religion, this line is extremely important.
If you hate any religion or race, you will be born in that faith in some other embodiment. If you keep criticizing someone for his or her way of life, you will come to live the same life at some point. You inevitably attract to yourself what you hate in others. इस जगह पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी जो भी डिविजन्स हम करते हैं, किसी भी तरह के डिवीजन के ऊपर बेस करके किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, धर्म से नफरत करना या उस धर्म के लोगों से नफरत करना या उस जाति के जो संस्कार है, जो उनके सोच है, उससे नफरत अगर हम करेंगे तो किसी ना किसी जन्म में, और ज्यादा चांसेस है कि अगले ही जन्म में, आप उसी जाति, उसी धर्म में आपका जन्म होगा। अगर हम किसी इंसान की बुराइयां, किसी इंसान के किसी किए हुए बात से या किसी किए हुए हरकत को नफरत करते हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं कि भगवान हमें उसी पोजीशन पे डाल देगा और हमसे भी वही काम करवाएगा। ये समझाने के लिए, पनिशमेंट नहीं है ये समझाने के लिए कि अगर आप इस पोजीशन पे होते तो आप क्या करते। It's very simple. It's like being in anybody else's shoe. There's a kahavat, right? That you cannot understand until you are in that shoe. ये कहावत क्यों है? हम जब तक किसी दूसरे इंसान के जगह पे अपने आप को नहीं रखते हैं, तब तक हम उस इंसान की, उस जगह की, उस सिचुएशन की, उस मुहूर्त की, उस सराउंडिंग की जो इफेक्ट है उसको नहीं समझ सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। I cannot sit here in Kolkata right now and imagine how does it feel to be in Iceland when it is minus 20 degrees centigrade. I cannot feel what it feels to be in, a Thar desert where it is positive 50 degrees centigrade, 60 degrees centigrade. I cannot sit here and imagine what it is like to be in Cherrapunji where it is constantly raining 365 days. Most rain happens there. नामुमकिन है मेरे लिए यहाँ बैठे बैठे उस चीज को महसूस करना। और ये तो सिर्फ वेदर है। जिंदगी की इतने रंग हैं, जिंदगी की इतनी पहलुएं हैं, उन्हें हम जब तक उस सिचुएशन में नहीं घुसते हैं तब तक उसके बारे में बोलना नामुमकिन है। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। वी शुड नॉट इवन ट्राई टू डू इट। So I remember when one of a very senior trainer, when he was taking a small session on karma, he asked, a lot of people were sitting, whole place was filled with people, and he asked, "How many of you have some negativity?" He did not use the word hate. अगर उन्होंने hate use किया होता word तो कोई हाथ नहीं उठाता, because everybody feels you're spiritual, you cannot raise the hand when you saying hate. So he said, "How many of you have some negativity against Pakistan?" Direct question. Be honest, self-honesty. How many of you have some negativity against Pakistan? And some people, they did not raise the hand. Some people just did like this. Some said, not negativity, but ठीक है, कुछ तो है, blah blah blah. ठीक है. How many of you, like you're ready to bet anything on an India-Pakistan cricket match? So blah blah blah. He was asking questions. And then he said, if you have any negativity against them, be ready to be born in Pakistan in your next lifetime. So if you have a hatred, if you have a dislike,
if you have any negativity against certain class of people, certain religion of people, certain classification of people, be ready to be born in the same caste, same classification in your next time. अगर आप किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, वो कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान का एग्जाम्पल एक मजाक मजाक में लिया गया क्योंकि बहुत लोग, लाइक द हिंदू मुस्लिम थिंग इज rampant, it is spread, India Pakistan is spread, but क्या हम अपने ब्लेसिंग्स में पाकिस्तान को भी उतना ही ब्लेसिंग दे सकते हैं जितना कि हम इंडिया को देते हैं? क्या हम जब पिंक पराना ब्लेस कर रहे होते हैं, गोल्डन पराना ब्लेस कर रहे होते हैं, क्या हम एक्सपैंड कर सकते हैं उसे पाकिस्तान तक, बांग्लादेश तक, चाइना तक? बांग्लादेश चाइना तो फिर भी हो जाएगा लोगों से, कैन बी एक्सटेंडेड अप टू पाकिस्तान? बिकॉज until and unless you are born there, you will never understand how are they living. जब तक हम इतने दूर है तब तक हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो कैसे जी रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोई भी चीज 100% अच्छा, कोई भी चीज 100% बुरा नहीं होता। क्या होगा अगर हम वहां पैदा हो गए तो? what if you only are born in that country in the next incarnation? There are many people who do not like the Jews, there are many people who do not like the Hindus। कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में जो बोलेंगे हिंदू, दे आर टू मच रिलीजियस, यू नो कभी भी देखो पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं, कभी भी देखो ये करने बैठ जाते हैं। दे आर सो ऑर्थोडॉक्स, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्ल्ड आउटसाइड, दे आर सो बैकवर्ड। मेनी पीपल, आई तो फेस दिस अ लॉट, so much of nice concepts are created about Bengalis, आप बंगाली हो, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, and then they'll be away from me। so many people I meet who do not like Bengalis, so many people I meet, Bengali people I meet who do not like Bengalis। So many things come around। अभी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोले तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं बोले तो भी फर्क नहीं पड़ता, थैंक्स टू द टीचिंग्स ऑफ मास्टर। बट if you are having any negativity towards any religion, any country, any place, any dharm, any caste, Brahmins, Shudras, ये कास्ट वो कास्ट, ब्राह्मण में भी कितने सारे कास्ट हैं, अगर ये आपके मन में है तो अधिकतर चांसेस है कि भगवान जी आपको अगले जन्म में उसी कास्ट, उसी धर्म, उसी देश में जन्म देंगे, सिर्फ समझाने के लिए कि इस देश के लोगों को क्या महसूस होता है, इस धर्म के लोगों को क्या महसूस होता है, इस धर्म की अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयां क्या है, इस धर्म की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। सिर्फ वो सिखाने के लिए, समझाने के लिए वो आपको इस धर्म में जन्म देंगे। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये उनकी शिक्षा देने का एक तरीका है, राइट? So just the way, if you have two friends or if you have two children, one son, one daughter, maybe the son is very snobbish and makes fun of the daughter. You will also want कि, your son should feel what the daughter is going through and you will put him into such situations, है ना? कि तुम अपनी बहन का मजाक उड़ाते हो, अगर बहन के सिचुएशन में होते तो तुम्हें कैसा लगता? हम ये नॉर्मली बोलते हैं ना, हम अपने बच्चों को भी ऐसे सिखाते हैं, पर जब बात हम तक आती है तब हम वो भूल जाते हैं। और ये सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जब हम कर्मा को समझने लगे हैं, नाउ दैट वी नो कि दिस बॉडी इज गोइंग टू बी ओनली फॉर सम इयर्स, व्हेन आई डाई दिस बॉडी विल गो अवे, इन नेक्स्ट इनकारनेशन आई कैन नॉट गारंटी दैट आई विल कम इन अ फीमेल बॉडी। क्या हम में से कोई ये गारंटी कर सकता है कि अभी अगर मैं मेल हूं तो मैं अगले जन्म भी मेल ही होगा, अभी मैं फीमेल हूं तो अगले जन्म फीमेल ही होंगी, मैं इस जन्म में बंगाली हूं तो अगले जन्म में बंगाली होंगी, क्या इस जन्म में मैं इंडिया में हूं तो अगले जन्म में मैं इंडिया में ही होंगी? क्या हम ये गारंटी कर सकते हैं? अब जब हम सोल कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो हमें धीरे धीरे अपनी सोच को और बड़ा बनाना होगा। जब हम ब्लेस करते हैं हमें उन सब लोगों को ब्लेसिंग देना होगा, खासकर उन लोगों को ब्लेसिंग देना होगा जिनके खिलाफ या जिनके तरफ थोड़ी सी भी नेगेटिविटी हमारे अंदर है, किसी भी तरह की। ये बहुत जरूरी है।
Let's move on. Besides, as seen earlier, the person you hate often comes back into your life in another lifetime as an immediate family member, even as your difficult partner. Hence, cultivate tolerance and show respect to everyone. Neither have hatred nor judge anyone's path, but bless them all to make their journey easier. तो जस्ट रिमाइंडर, अगर हम किसी से नफरत करते हैं, अगर कोई हमारा जानी दुश्मन है इस जन्म में, हो सकता है सास हो, ससुर हो, ननद, जेठानी, जेठ, दोस्त, बॉस, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का एक्स गर्लफ्रेंड, इट कैन बी एनीबडी whom we really hate. We don't want to meet this person. We don't want to forgive this person. We have grudges against this person. The same person, the same soul might come to you, come back to you as a close family member. And many chances are there it can be your life partner as well. हम जिस इंसान से नफरत करते हैं वो कोई भी हो सकता है, वो अगले जन्म में हमारे पास वापस आएंगे, हमारे परिवार का ही एक सदस्य बन के, और हो सकता है हमारा ही लाइफ पार्टनर बन के. ओके. The soiled cloth worn by others could have been yours in the past or be yours in the future. Written by Annie Besant. Everyone is bound by their karma and is compelled to go through certain experiences to balance them through a preordained path. Hence, be compassionate to people in crisis or the underprivileged ones struggling with their lives. In our long journey, what truly matters are the experiences we gather and the lessons we learn along the way. Good or bad, all serve a purpose. So there is this amazing picture which has been drawn in this book. I would like to show it out here if you can see. So there is this nice modern, a man and a woman, and then there's a beggar, almost like a beggar, a person who's on the streets. Okay, so this is the picture, and basically what they are saying is, the lady is saying, "What a smell! He stinks," because it's a beggar, torn clothes, and he's stinking. उस गरीब आदमी के बदन से बहुत बदबू आ रही है. एंड वो लड़का बोलता है, हे मूव अवे, दूर जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से, डोंट कम क्लोज टू अस, बिकॉज दैट मैन एंड द वुमन इज रिच, एंड उनको बदबू आ रही है उस बेगर के क्लोथ से. ना वो बेगर बोल रहा है, माई कर्मा हैज ब्रॉट मी टू दिस, व्हाट कर्मा आर यू क्रिएटिंग नाउ. सो द बेगर रियलाइजेस दैट उसने भी किसी जन्म में किसी बेगर को बुरा भला कहा था, इंसल्ट किया था, हेट किया था. तो आज वो एक बेगर बन गया है. आप कौन सा कर्मा जनरेट कर रहे हो अभी? आज आप रिच हो, आपके पास महंगे कपड़े हैं, बहुत अच्छे परफ्यूम से आप महक रहे हो, पर अगर आप अपनी जुबान से, अपनी सोच से, अपनी हरकतों से किसी और को इंसल्ट करते हो, तो वो कर्मा आपके पास घूम के तो आएगा ना तब. एंड मोस्ट ऑफन इट कम्स इन अ वे, either in the same lifetime when life becomes very tough, or in another lifetime when you don't even remember your own karma. तब हमें लगता है कि भगवान कितने निर्दयी है, हमें जमीन पे रखा है, हमें, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हम स्टिंग कर रहे हैं, ये समथिंग लाइक दैट. पर हम ये भूल चुके हैं कि पिछले जन्म में हमने क्या किया था. इसलिए it doesn't take much to be kind. It doesn't take much to be tolerant. It doesn't take much to be compassionate towards people who are having a bad time. But it can really save your own karma big time. It can really cause you good karmic effect, good karma. It can increase your bank balance of karma.
It can save you from future pains. It can save you from future unnecessary problems, pains, neutralizing bad karma, etc. etc. छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई मेड काम करने आती है, आपके घर में कोई बंदा आपको सर्व करने आता है, आपके घर में कोई सब्जी वाला आता है, कोई फल वाला आता है, आप उसको उसके साथ आप कैसे बर्ताव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैं शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आई थी, मैंने देखा था कि मेरी जो सासू माँ है, वो हर दिन सुबह, जो समर्स का सीजन है ना, समर्स के सीजन में वो हर दिन सुबह आम पन्ना जैसा कुछ बनाती थी. वो खट्टे आम के साथ बनाते हैं ना, मसाला वगैरह डाल के, एंड बहुत अच्छे से बना बना के छोटे 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 बॉटल्स में डाल के फ्रिज में रखती थी. तो मुझे लगता था, ये इतना सारा आम पन्ना क्यों पीती है सारा समर्स में. बट देन आई रियलाइज वो अकेले नहीं पीती है. पूरा समर भर जितने भी लोग इस घर में आते हैं, चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाला हो, रद्दी वाला हो, पानी वाला हो, एनी पर्सन, इवन राह चलते लोग है, केबल वाला है, जो भी इस घर में आता है समर्स के टाइम पे, वो एक एक बॉटल निकाल के सबको देती रहती है. एंड सुबह खुद वो सारा बनाती है एंड फिर वो देती रहती है सारा दिन. सो आई वॉज रियली टच्ड बाय दैट, ऐसे कि शायद मैं ये नहीं कर पाती. या इट्स वेरी गुड फॉर द समर्स. तो शायद मैं ये नहीं कर पाती, मैं इतना मेहनत नहीं कर पाती कि मैं सुबह सुबह बनाऊं एंड रख दूं, एंड विदाउट एनी चार्जेस एंड इवन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग एनीथिंग बैक. मोस्ट ऑफ द लोग ये कभी जानेंगे भी नहीं कि वो ऐसा कुछ करती है. बट आई वॉज वेरी टच्ड बाय हर एक्शन, एंड आई लर्न इट फ्रॉम हर. ये छोटा सा एक्ट उनके जिंदगी में, उनके कर्मा में कौन सा बड़ा ब्लेसिंग बन के वापस आएगा, हम कोई नहीं जानता. और शायद उन्हें उस बात का एक्सपेक्टेशन भी नहीं है. बट आई नो इट विल कम बैक इन अ वेरी गुड वे टू हर. तो मैंने उनसे ये चीज सीखा. इफ पॉसिबल आई विल ऑल्सो लाइक टू डू इट सम टाइम फॉर सम पीपल. सो छोटी छोटी चीजें, हम अपने घर के मेड से कैसे बात करते हैं, हम अपने घर के सामने अगर कोई भिखारी है, अगर कोई बेगर है, अगर कोई इंसान को हम रास्ते में देखते हैं कि जो तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, हम उनसे कैसे बात करते हैं, उनकी तरफ हम कैसे देखते हैं, हम उनके बारे में देख के क्या सोचते हैं. तो हमारी शब्द, हमारी सोच और हमारे एक्शन, तीनों चीज मैटर करता है. बहुत ज्यादा मैटर करता है गुड कर्मा अर्न करने के लिए एंड बैड कर्मा अर्न करने के लिए, दोनों चीज में. सो अगर पॉसिबल हो, हमें कोशिश करना चाहिए छोटी छोटी चीजों से हम गुड कर्मा अर्न करें और बैड कर्मा को स्टॉप करें. हमने किसी को सड़क पे देखा, हमने उसके लिए बुरा नहीं सोचा, हमने बैड कर्मा होने से रोक दिया, हमने उस इंसान को ब्लेस किया, हमने उसे थोड़े पैसे दिया या कुछ खाने को दिया, हमने गुड कर्मा जनरेट किया. इस तरह छोटी छोटी चीजों पे हम बुरे कर्मा को कम कर सकते हैं और अच्छे कर्मा को बढ़ा सकते हैं. So we can, balance it out. We can start reducing our bad karma and we can start increasing our good karma by these small, small actions and steps. Okay. The art of living, inner reflection. So, yeah, that's amazing work to do, Tanjavi. Right, really nice. So this lady, Annie Besant, if you see page number 98, the lady who has said this word, the soiled cloth worn by others could have been yours in the past or be yours in the future. This lady, Annie Besant, what she used to do was she used to open her newspaper every day in the morning, read through the newspaper, and whatever information was there on the newspaper, there's an earthquake somewhere, a flood somewhere, somebody has died, somebody is not well, some accident taking place somewhere in the city or in the country. She used to sit and bless everybody. हर दिन वो अपने सुबह सुबह वो न्यूज़पेपर खोलती थी. न्यूज़पेपर में जितनी भी खबरें हैं, उसके बेसिस पे वो सबको चुन चुन के एकदम एक एक करके वो सबको ब्लेस किया करती थी. So Annie Besant is a great soul, great soul. So she used to do that, and definitely it's a form of good karma, earning good karma. क्या आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो कि किसी के घर में डेथ हो गई, वो आता है ना छोटा छोटा श्रद्धांजलि आता है, आप उस इंसान को ब्लेस करो, आप उस सोल को ब्लेस करो, आपका कोई कनेक्शन नहीं है उस सोल के साथ,
Don't you think you will earn good karma? So this was her way of doing service. Okay, so revising the entire chapter, the art of living, inner reflection. Number one, what I resist will persist. I will accept things that I cannot change. जो चीजें मैं सबसे ज्यादा जिन चीजों से मैं भागना चाहती हूँ वो चीजें मेरे पीछे भागती रहेगी। इसलिए बेटर है कि जिन चीजों से मैं भाग नहीं सकती, जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकती, उन्हें मैं अपना लेती हूँ। Number two, all situations of my life are opportunities for learning and growing. There are always hidden blessings in all that happens to me. जिंदगी का हर सिचुएशन, हर अच्छा, हर बुरा चीज मुझे एक अपॉर्चुनिटी देगा उससे कुछ सीखने के लिए एंड उससे आगे बढ़ने के लिए। तो जो भी कुछ मेरे जिंदगी में हो रहा है उसमें एक छुपी हुई अच्छाई है और मैं उस अच्छाई को देखने की कोशिश करूंगी। नंबर थ्री, नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीजन। All that happens is a result of one's choices. I am responsible for all that experience. I will not point fingers and blame others. तो जिंदगी में जो भी होता है वो एक वजह से होता है। जो भी कुछ हो रहा है मेरे जिंदगी में वो मेरे ही चूज किए हुए रास्तों के वजह से है, मेरे ही पास कर्मा के वजह से है। तो मैं सामने उंगली दिखा के किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूंगी। नंबर फोर, situations are created to balance my karma. I will work on my karma and heal past wounds. मेरे जिंदगी में जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो मेरे ही प्रीवियस कर्मा को बैलेंस करने के लिए हो रहा है। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने कर्मा पे काम करूं, बुरा कर्मा कम करूं, अच्छे कर्मा को बढ़ाऊं और मैं अपने पास्ट वुंड को भी हील करने का कोशिश करूंगी। अगर हम में से कोई भी अपने पास्ट को लेके बैठ जाए तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए पास्ट को हील करना जरूरी है। I will nurture young souls and with patience and care. I will be tolerant and have respect for everyone. जो भी यंग सोल है, जो मुझसे उम्र में छोटा है, नॉलेज में छोटा है, मच्योरिटी में छोटा है, स्पिरिचुअलिटी में शायद छोटा है, मैं उन सभी लोगों को बढ़ने में, बेहतर बनने में मदद करूंगी। और एट द सेम टाइम मैं सबको आ, बर्दाश्त, ये शब्द मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, दो टॉलरेंट वर्ड का हिंदी बर्दाश्त ही होता है, बट फिर भी मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी कि सहानुभूति के साथ मैं लोगों की तरफ देखूंगी। अगर कोई इंसान बार बार गलती कर रहा है तो वो इंसान ढेर सारा नेगेटिव कर्मा जनरेट कर रहा है। तो मैं बर्दाश्त करने की जगह, ये शब्द मैं यहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहती, मैं रादर ये बोलना चाहती हूँ कि मैं सहानुभूति की तरफ, सहानुभूति के साथ उस इंसान की तरफ देखूंगी कि ये इंसान समझ नहीं रहा है, ये अभी तक एक यंग सोल है, ये एक बुरा कर्म क्रिएट कर रहा है, ये कर्म तो इन्हीं के पास वापस आएगा। तो मैं सहानुभूति के साथ उनके तरफ देखूंगी कि काश कि ये इंसान अपनी गलतियों को समझ पाए, सुधार पाए, वो सही रास्ते पे चल पाए, भगवान की दुआएं इस इंसान के साथ रहे। ओके, एंड ऑफ कोर्स सबको रिस्पेक्ट के साथ देखूंगी। Number six, I attract to myself what I hate in others. I will neither have hatred nor will I judge others. अगर मैं अपने अंदर नफरत भर दूं तो मैं उसी नफरत को ही अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाऊंगी। इसलिए मैं किसी से नफरत नहीं करूंगी, मैं किसी को जज नहीं करूंगी, रादर मैं सबको ओपन नजर से देखने की कोशिश करूंगी कि जो जैसा है वैसा है, वो उस सिचुएशन में है, उसने वही सीखा है, वही कर रहा है जो उसके कर्म के हिसाब से है। तो मुझे किसी को जज नहीं करना है। लास्ट पॉइंट नंबर सेवन, roles change. I shall never have any feeling of contempt or superiority. I will be kind,
and compassionate with all. तो कोई भी रोल, किसी का भी रोल बदल सकता है। आज मैं बहुत अमीर हूँ, कल मैं गरीब हो सकती हूँ। आज मैं गरीब हूँ, कल मैं अमीर हो सकती हूँ। कुछ भी बदल सकता है। रोल, कोई भी रोल परमानेंट नहीं होता। इसलिए मैं सभी के तरफ सहानुभूति के साथ देखूंगी, और अपने लिए सुपियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखूंगी, कि मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगी कि आज मैं ऊपर हूं तो मैं हमेशा ऊपर रहूंगी। तो घमंड नहीं आने दूंगी, प्राइड नहीं आने दूंगी। रादर मैं सबके तरफ काइंड हाथ रखूंगी, ठीक, दया रखूंगी, अच्छे भावनाएं रखूंगी सभी की तरफ, इवन अगर वो इंसान मुझसे कमजोर भी है तो भी। So these are the 7 points of the art of living. We end chapter 3 here, and we will start chapter 4 from the next week. So just a small story I like to share here. मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा था फेसबुक में कहीं पे, एंड वो क्लिप मुझे पसंद आया था। तो वो क्लिप, इफ अगर मुझे कभी दोबारा मिले तो मैं फेसबुक का वो शेयर भी करूंगी अपने ग्रुप्स में। तो वहां कुछ ऐसे दिखा रहा है कि एक पत्थर है, एंड अ मैन इज लाइक हैंग, बेसिकली ट्राइंग टू लाई डाउन ऑन दैट माउंटेन, एंड ही इज ट्राइंग टू पुल अ गर्ल फ्रॉम बिलो। तो एक लड़की है जो उस पहाड़ से लटक रही है। तो वो एक आदमी है जो उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। ओके। तो जो आदमी है उसके ऊपर भी एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ है। तो वो आदमी खुद जख्मी है, वो खुद पत्थर के नीचे खुद दबा हुआ है। फिर भी वो जो लड़की गिर रही थी उस लड़की को उठाने की कोशिश कर रहा है। और जो नीचे लड़की लटक रही है उसके सामने एक सांप है, एक स्नेक, जो किसी भी टाइम उसके हाथ को डस सकता है। नीचे जो लड़की लटक रही है वो सोच रही है कि वो आदमी जो ऊपर है वो और जोर क्यों नहीं लगा रहा, वो मुझे खींच क्यों नहीं रहा है, वो तो आसानी से मुझे खींच सकता है। और जो ऊपर आदमी है वो सोच रहा है कि ये लड़की क्यों लटक रही है, ये थोड़ा खुद से जोर क्यों नहीं लगा रही ऊपर आने के लिए। मैं ऑलरेडी एक पत्थर के नीचे दबा हुआ हूं, मैं कैसे उसको उठाऊंगा। सो this is a beautiful picture which depicts that you don't know what the other person is going through. मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ है, पत्थर है, मैं कोशिश किए जा रही हूँ, फिर भी बाकी लोग क्यों नहीं कोशिश कर रहे। हमें नहीं पता बाकी लोग किस हालत में हैं। हो सकता है कि वो अपने अपने हिसाब से वो अपना जी जान कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो अपना बेस्ट पॉसिबल दे रहे हैं। हो सकता है वो अपनी मजबूरियों में फंसे हुए हैं। पर हम कभी नहीं समझ सकते कि सामने वाला किस तकलीफ में है। सेम, सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि हम किस तकलीफ में हैं, हम किस बोझ के नीचे दबे हुए हैं। वो लटकने वाला इंसान नहीं समझ पाएगा। उसे लगेगा कि हम मेहनत नहीं कर रहे, या हम कोशिश नहीं कर रहे, या हम कुछ और कर सकते थे। हम अपने लिए ना बहुत आसानी से ये सोच लेते हैं कि दुनिया में कोई मेरी पोजीशन समझ नहीं पाएगा, मैं किस दौर से गुजर रही हूँ कोई समझ नहीं पाएगा, ये हम आसानी से सोच लेते हैं। पर क्या हम ये सामने वाले के लिए सोचते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे ननद देवर, मेरे बच्चे, मेरे ऑफिस का क्लाइंट, मेरा पेशेंट, मेरा बॉस, वो किस दौर से गुजर रहा है मैं नहीं समझ पाऊंगी। हम यूजुअली इस जगह को मिस कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं सामने वाले को या तो ब्लेम कर लेते हैं, या तो सामने वाले से नफरत कर लेते हैं, या तो सामने वाले से दूरी बना लेते हैं, या तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है, या तो हम सोचते हैं कि सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो एक नेगेटिविटी आ जाती है हमारे अंदर। पर अगर हम इस बात को, ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है, एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉलरेंस, अगर हम इन तीनों चीजों को अपने जिंदगी के हर पहलू में डालना चालू कर दे। लेट अस लुक एट आवर लाइफ पार्टनर, let us see, can I accept my life partner just the way he is? Can I take responsibility that I have only attracted this life partner? This life partner is the best for me because he is teaching me some lessons. And can I tolerate my life partner with a smile, with a kind heart,
I understanding how he is or she is, then the relationship with the life partner is going to improve day by day. If I can do the same with my office colleagues, with my boss, with my clients, my work, my business, my profession is going to become better and better day by day. If I can do that same thing with my children, then my relationship with my children is going to become better and better day by day. If we can do that same thing with our God and Guru, maybe our relationship with God and Guru is going to become better and better day by day. Okay, so ending chapter 3 in that note. Uh, thank you so much, Seema ji. Uh, these are hard lessons of life, and again, I will remind you, I am not perfect at all. आज सुबह ही ये सेशन लेते लेते ही मैं रियलाइज कर रही हूँ कि सुबह मैंने क्या गलती की थी. सो आई एम ग्रोइंग ऑल्सो डे बाय डे. ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियां नहीं होती या मुझे सब समझ में आता है. लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि जब मैं सेशन में बैठती हूँ, कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एनर्जी आती है. मुझे मेरी गलतियां बेटर समझ में आती है. So when I'm taking the session now, I do realize my own mistakes in a better way. So I deeply now realize that why did the other person make the mistake in the morning today? Why was I getting angry on that person today? I did not need to have do that. And definitely I will do the forgiveness for sure because I know my mistake. So मुझे भी forgiveness करना है. So let's move on to the meditation, to the twin hearts. And there are many questions in the chat box. After the meditation, I will definitely like to answer the questions. क्योंकि हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं तो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग बोलिए, प्रैक्टिस बोलिए, बेटर होती है. So we'll do the meditation and I'll try to answer the question. Let us just be receptive, gently close your eyes, relax yourself. Take a deep breath. Today, in the meditation itself, we will pray to God. May God and Master Chua bless us with more tolerance, with more acceptance, with more ability to take responsibility for our actions and our deeds and our thoughts. इस ट्विन हार्ट मेडिटेशन के दौरान हम भगवान से सब मिलके एक साथ ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज वो दे. हमारे अंदर वो दया दें, करुणा दें, सामने वाले को समझने की शक्ति दे, हमारे अंदर इतनी वो समझ दे कि हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है हम सब उसकी जिम्मेदारियां उठा सके, हम अपने कर्मा को समझ सके और उसे हील भी कर सके. We are all super receptive to the energies of the twin heart meditation. May the love, light, and power of the twin heart meditation help each one of us heal our karma today in full faith. So be it, so be it, so be it.